Good evening class. In last video we have discussed the anatomic structure of flowering plants, and in this we have totally completed our most important topic, and also it is a very precious topic for board exams and 11th class also, and this topic was xylem and phloem. Okay, so we have discussed xylem and phloem and in a detailed manner, and we have also discussed the types of xylems and the types of phloem also. Okay, so in this we have discussed that one of them is responsible for conduction of water and one of them is conduction for food also. Okay, so in this there is a different types of systems and cells are there which can make easy way to conduction of water from roots to the all the parts of body and food from leaves to another parts of the body. Okay, so in this we have discussed some of them is a horizontal types and some of them is a vertical types. So apart from that, now we are going to discuss the most important part of anatomy structure of flowering plants. In this, generally we all are aware about the stomata. Okay, because in 5th class 6th class science we have studied so many times the stomata एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर गार्ड सेल्स वगैरह हम लोग बहुत सारी चीजें देख चुके हैं. सो लेट अस डिस्कस सम मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ the most important tissue system in plants. Okay, why? Because most of the human beings and animals also comprises a different things of tissues, and their body organs and their body muscles and cells are also made up of different types of cells and tissues. So let's discuss one by one which types of tissues plays an important role in the plant system. So first of all, tissue system is going to discuss the epidermal tissue system. Epidermal, generally so many times we have discussed epidermis and endodermis. Two types of layers are generally found in any cells of tissues. Are किसी भी सेल्स में या किसी भी टिश्यू में दो प्रकार के लेयर्स जो हमने बहुत बार देखा है, एक है हमारा एपिडर्मल और एक हमारा एंडो. ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं एपिडर्मल्स की, सो ईपी मींस जनरली इट इज द आउटर मोस्ट and protective layer, and generally it is made up of different types of cells and tissue, क्योंकि बहुत सारे cells और tissue से हमारा जो epidermis है जनरली जो बाहर का layer है वो formed है. ठीक है. So epidermis means it is the outer layering of any cells and it is the most important. It also considered as protective layer. Why? Because it is made up of different types of cells and tissue. So EP का मतलब होता है बाहर, endo का मतलब होता है अंदर. Most important you have to don't get confused. So epidermal tissue system में हम सबसे पहला जो important parts हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सबसे important point है और किसी भी एग्जाम्स में जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. So it comprises of epidermal cells. epidermal cells की हम बात करते हैं, यानी जो भी हमारा epidermal cells है इनके बाहर का जो स्ट्रक्चर्स है उसे हम epidermal cells कहते हैं, यानी पूरा जो बाहर का लेयर है वो epidermal है यानी epidermis है. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कौन कौन सी चीजों को कंसिस्ट करके रखते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दे कंसिस्टेड द पार्ट ऑफ द स्टोमेटा. जनरली इनमें स्टोमेटा होगा, ट्राइकोम्स होंगे. दिस इज द न्यू फंक्शन. आई थिंक यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ट्राइकोम्स. एंड ऑल्सो द रूट हेयर्स. ठीक है. इसमें रूट हेयर्स अलग फंक्शन करते हैं, ट्राइकोम्स अलग फंक्शन करते हैं, एंड स्टोमेटा ऑल्सो do the different functions. So सभी के different function है इस plant system में. So we will discuss one by one each of them. ठीक है. Next we are going to discuss that epidermis is a protective in function. We know that epidermis is a protecting in function. Why? Because in plant the cell wall is a well and modified. ठीक है. प्लांट सेल की बात करते हैं तो उनमें जो सेल वॉल होते हैं बहुत ही वेल फॉर्म्ड में होते हैं और मॉडिफाइड वर्जन्स में होते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिडर्मल की बात करते हैं. सो एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. इसका जो काम होता है वो प्रोटेक्शन फॉर द सेल सिस्टम एंड इंटरनल ऑर्गन, यानी अंदर के ऑर्गन को और पूरे सेल सिस्टम को ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर. एक इसमें क्यूटिकल लेयर्स होते हैं जनरली जो वैक्सी होते हैं. वैक्सी के बारे में हम लोग कभी बहुत सारे बुक्स वगैरह में पढ़े वैक्सी टाइप. ठीक है. सो इट इज अ क्यूटिकल एंड वैक्सी लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के साथ ही अटैच्ड होते हैं, बट इट इज एन आउटसाइडर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस के आउटसाइडर पार्ट में एक क्यूटिकल नाम की वैक्सी लेयर जो है उसके साथ अटैच्ड होती है. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये काफी लोंगेटेड फॉर्म में होते हैं और वो पूरे के पूरे एपिडर्मिस को कॉम्पैक्ट करके रखते हैं. नेक्स्ट क्यूटिकल का मतलब अगर हम देखते हैं, if we are discussing detailed function of cuticle, so cuticle is a thick होता है, most important not thin, थिक होते हैं एंड वैक्सी लेयर होते हैं. ठीक है.
थिक के साथ साथ ये वैक्सी लेयर होते हैं दैट प्रिवेंट्स द लॉसेस ऑफ वाटर। इसका मतलब जो स्टोमेटा यानी गार्ड सेल से जो भी अंदर से सेल से जो वाटर का लॉसेस हो रहा है उसको ये क्यूटिकल क्या करते हैं, ये स्टॉप करते हैं, कम करते हैं। एंड इट इज एब्सेंट इन रूट्स, लेकिन ये रूट्स में जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली इट इज एब्सेंट इन रूट्स। जो रूट्स होते हैं जनरली जो सॉइल में होते हैं इनमें ये सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टोमेटा का। सो मेनी टाइम्स वी हैव स्टडीड इन 6th-7th क्लास की साइंस की बुक में हमने देखा है स्टोमेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट आल्सो हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो गैसियस एक्सचेंज को मेंटेन करता है। इट मींस दैट देयर इज अ पैसेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड स्टोमेटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू रेगुलेट सच टाइप ऑफ फंक्शन। It means that stomata is only beneficial for gaseous exchange and also complete the process of transpiration। जो transpiration का process होता है means absorption of water by the sun's radiations and different things जो भी होते हैं। So इसमें भी opening and closing होती है जो हमने 6th या 7th क्लास में already पढ़ चुके हैं। So stomata का most important function है gaseous exchange के लिए होते हैं, ठीक है। And next is transpiration। Transpiration का मतलब होता है some of the water molecules are generally absorbing by the sun's radiations, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की मदद से पानी जो है बाहर की तरफ ट्रांसपिरेट होकर बाहर निकलते हैं। सो ये सारे स्टोमेटा के फंक्शंस में ही आते हैं। इनमें एक इंपॉर्टेंट होता है गार्ड सेल्स जो कि किडनी जैसे बीन शेप्ड होते हैं। किडनी जैसे मोस्टली सो मेनी टाइम्स ये बीन टाइप शेप्ड होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और ये शेप्ड आपस में जो है अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड, ये जो होते हैं ये गार्ड सेल्स होते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईच स्ट्रोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड। ये 2 बीन शेप्ड में होते हैं। बीन ठीक है, एक प्रकार का वेजिटेबल्स के फॉर्म में इज कॉल्ड गार्ड सेल्स। इसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं जो कि ऑल्सो कम्स इन द स्ट्रोमल पोर। ये स्ट्रोमल पोर के जस्ट बाहर होते हैं। स्ट्रोमेटल पोर जो होते हैं बीच में बाहर होते हैं और इनके पास जो गार्ड सेल्स होते हैं इनमें से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस इनसे स्टार्ट होती है, ठीक है, स्ट्रोमेटल पोर से। इनसे बाहर और भी बहुत सारे लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये लेयर्स होती है। और इसके अलावा इनकी जो एपिडर्मिस की लेयर है वो पाई जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टोमेटल पार्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्सिडियरी सेल्स। कुछ ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं या स्टोमेटल सेल्स होते हैं जो कभी काफी स्पेशलाइज्ड फंक्शन में परफॉर्म करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट गार्ड सेल्स बिकम्स स्पेशलाइज्ड। कभी कभी गार्ड सेल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं एंड वी नो द मीनिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड। सो समटाइम्स गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप। उनके शेप में कुछ स्पेशल फंक्शंस आ जाते हैं which may be elongate या which may be syncoid, लेकिन elongate ही होते हैं जनरली। तो ये जनरली जब इनके शेप में चेंजेस आता है और उनके साइज में भी चेंजेस आता है आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स। ऐसे सेल्स को हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। सो सब्सिडियरी सेल्स का मतलब होता है समटाइम्स the guard cells perform specialized functions to change their shape and size also। ये जो guard cells होते हैं यहाँ पे जो पाए जाते हैं ये अपने shape और size को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। that is all about the subsidiary cells। ऐसे cells को हम लोग subsidiary cells के नाम से जानते हैं। okay, next root hairs। okay, because we have studied that epidermis। अभी तक हम लोग जितने भी पोर्शन कंप्लीट करें that is all about the epidermal tissue system of flowering plants। so जो भी उनका epidermis होता है वो काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और उनमें जो रूट हेयर्स की बात करते हैं इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिफोर स्टार्टिंग 6th चैप्टर में कि जो रूट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रोल प्ले करते हैं मोस्टली इनका जो काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यानी सॉइल में जितने भी वाटर कंटेंट है या मिनरल्स के कंटेंट है उनको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं और पूरी बॉडी पार्ट्स में रेडियल फॉर्म में मतलब जो वर्टिकल फॉर्म में क्या करते हैं, पूरा इनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द रूट्स हेयर। ये रूट्स हेयर होते हैं जनरली फाउंड इन द रूट्स पार्ट। ये रूट्स पार्ट्स में होते हैं, शूट पार्ट में नहीं होते हैं। ट्राइकोम की बात करते हैं। ट्राइकोम इज द न्यू थिंग। ट्राइकोम का मतलब होता है ये एक प्रकार के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जनरली इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉसेस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। यानी जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है इट मींस दैट व्हेन द प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड बाय लूजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स दैट टाइम
ट्राइकोम इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के भी अंदर ट्राइकोम्स होता है, दैट प्रिवेंट्स द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, यानी वाटर को लॉस होने से ट्राइकोम जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. ठीक है, रूट्स हेयर जो होते हैं इट मे बी यूनिसेलुलर आल्सो. सो ट्राइकोम इज अ मल्टीसेलुलर बट इट यूज्ड फॉर प्रिवेंट्स ऑफ वाटर लॉसेस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉसेस होता है उसको प्रिवेंट करने का काम ट्राइकोम करता है, विच इज फाउंड इन द एपिडर्मल पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टोमेटल अपैरेटस? सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम पर्पस. स्टोमेटल अपैरेटस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट द स्टोमेटल अपर्चर, यानी जो उसका डिजाइन है, अपर्चर इज अ डिजाइन आल्सो, एंड गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स, यानी गार्ड सेल्स और उसके आसपास जितने भी सब्सिडियरी सेल्स हैं आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस. उसी को हम स्टोमेटल अपैरेटस कहते हैं. मतलब वो एक कैसा इक्विपमेंट्स है, कैसा दिखता है. जैसे सो मेनी टाइम्स वी हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री अपैरेटस. अपैरेटस के बारे में हम केमिस्ट्री में, बायो में बहुत सारी जगह देखते हैं. सो स्टोमेटल अपैरेटस का मतलब होता है द स्टोमेटल अपर्चर, जैसा वो डिजाइन है जिसमें गार्ड सेल्स आते हैं, सब्सिडियरी सेल्स आते हैं और एक साथ कंबाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस. इसी को हम स्टोमेटल अपैरेटस कहते हैं जब ये पूरा कंबाइन पैक्ड होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. नेक्स्ट we are going to discuss the ground tissue system. Ground tissue system is also a different thing because it is comprises of all tissue except epidermis and vascular bundles. ये epidermis को छोड़कर और vascular bundles को छोड़कर, vascular bundles and tracheids we have already discussed. So ground tissue, those tissue which comprises all the types of tissues except epidermis and vascular bundle, यानी ये vascular bundle जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, epidermis जो कि प्रोटेक्टिंग लेयर होती है फाउंड आउटसाइड द बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो उसको हम epidermis. तो epidermis और vascular bundles को छोड़कर जो भी सेल्स आते हैं वो सब ग्राउंड टिश्यू में आते हैं. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. इन नेक्स्ट फेज वी हैव टू डिस्कस सम मोर अबाउट द फंक्शंस ऑफ ग्राउंड टिश्यू. ओके, सो we have to discuss that the vascular bundles. Okay, so in previous we have discussed that vascular bundles is also provide a special surface area to transport different types of things in the plant sections also. Okay, so vascular tissue it comprises of complex tissue. अब हम बात करते हैं vascular tissue का. So mostly vascular tissue comprises a कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कैरी करते हैं जिसमें हमारा जाइलम होता है, फ्लोएम होता है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ देम इज कंडक्शन फॉर वाटर एंड वन ऑफ देम इज यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ फूड. सो इसका मतलब वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है या वेस्कुलर टिश्यू जो होती हैं वो जनरली किसी भी चीजों को, चाहे वो वाटर हो गया चाहे वो फूड हो गया, उनको रेगुलेट करने के लिए पूरे प्लांट्स बॉडी में यूज होते हैं. दैट इज ऑल अबाउट दी वेस्कुलर टिश्यू और वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है, बट अगर ये ज्यादा गुच्छों में पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर बंडल्स आल्सो. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब हम बात करते हैं इनमें कैम्बियम होता है. सो कैम्बियम जो होते हैं एक थिक लाइक वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं. जनरली ये जाइलम एंड फ्लोएम के पास होते हैं. ठीक है, या कुछ में बीच में पाया जाता है या कुछ में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैम्बियम की बात करते हैं तो इट इज प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट. ये प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इट मे बी कैम्बियम इज प्रेजेंट इन समवेयर एल्स, क्योंकि हो सकता है कि जो कैम्बियम है वो कहीं और भी प्रेजेंट होगा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल की, वेस्कुलर टिश्यू हमारा फिर वापस जाके ओपन वेस्कुलर टिश्यू में बंडल में एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में डिवाइड होते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल में, सो इट कंटेन्स द कैम्बियम. कैम्बियम जो होते हैं थिक होते हैं, नॉट थिन, एंड फाउंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. इसका मतलब अगर मैं बात करूं कैम्बियम का, सो इट इज स्ट्रक्चर एक ऐसा है, तो कैम्बियम जो है इनके बीच में होगा. ठीक है, एंड इधर अगर फ्लोएम है तो इधर आपका क्या होगा, जाइलम. ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अल्टरनेटिवली फॉर्म में भी होते हैं कुछ, तो बीच में जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा वो आपका कैम्बियम होगा. ठीक है, नेक्स्ट, कैम्बियम हैज द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू और मोस्टली इट इज फाउंड इन डाइकोटिलेडन्स. डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स में ज्यादा होते हैं और कैम्बियम की एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि फर्दर डेवलपमेंट करके सेकेंडरी टिश्यू का क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नोट इट. क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं.
क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स में क्या होता है, इट लैक कैम्बियम, इनमें कैम्बियम होता ही नहीं है। सो नेक्स्ट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम एंड फ्लोएम में कैम्बियम इट इज नॉट फाउंड, एंड सिंस कैम्बियम इज एब्सेंट, इसका मतलब कैम्बियम यहाँ पे एब्सेंट हो गया, सो इट इज मोस्ट कॉमन इन मोनोकोटिलेडन्स। तो ये जो चीजें हमको, ये जनरली वी हैव टू सी इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स, ये हमको मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वेस्कुलर टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, एक है ओपन वेस्कुलर बंडल और एक है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। तो ओपन वेस्कुलर बंडल इज डिफरेंट थिंग एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल इज डिफरेंट थिंग। एक डाइकोटिलेडन्स में होते हैं, एक आपके मोनोकोटिलेडन्स में होते हैं। दोनों का जो स्ट्रक्चर्स है, दोनों के जो फीचर्स होते हैं वो दोनों अलग होते हैं। कैम्बियम एक में होता है, एक में नहीं होता। सो मेनी टाइम्स ओपन वेस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कम्स इन द वे ऑफ डिफरेंशिएशन। इनको कई बार कभी कभार क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंशिएशन के बेस पे आ जाते हैं कि इनके बीच का जो एडजेक्ट डिफरेंस है वो क्या है, कौन से मोनोकॉट में होते हैं, कौन से डाइकॉट में होते हैं, किनमें क्या फंक्शन होता है, कैम्बियम का क्या यूज है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट रेडियल वेस्कुलर बंडल। अब हम बात करते हैं, ओपन हमने डिस्कस कर लिया, क्लोज्ड हमने डिस्कस कर लिया, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेडियल वेस्कुलर सिस्टम। रेडियल वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। सो जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली ऑन अ डिफरेंट रेडियाई। इसका मतलब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, सो जाइलम एंड फ्लोएम जो हमारे अरेंज्ड होते हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं, बट इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडियाई। जैसे हम बात करते हैं, सपोज ये एक हमारा सर्कल है, सो इसमें जो है अगर बीच में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करो तो बीच में अगर हमारे जाइलम है, सो इट इज फाउंड इन डिफरेंट रेडियाई। तो सबसे लास्ट पोर्शन में क्या होंगे हमारे, ठीक है, सबसे लास्ट पोर्शन में हमारे फ्लोएम होंगे। सो दिस इज आल्सो डिफरेंट थिंग। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियल वेस्कुलर बंडल इज सेड टू जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम both are present but arranged in a alternatively on a different radii। दोनों का जो रेडियाई अलग होता है। जाइलम may be found in the central part and जो फ्लोएम होता है may be found in axial part, लास्ट पार्ट में पाया जाएगा, टर्मिनल एंड पे। या तो फ्लोएम इस रेडियाई पे प्रेजेंट होगा या तो ऊपर के जस्ट रेडियाई पे, लेकिन जो जाइलम है वो सेंटर के रेडियाई पे होता है, ठीक है। दोनों जो है अल्टरनेटिवली, अगर ये इधर है तो ये इधर, अगर ये है तो ये यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द radial vascular bundle. Next, we have to discuss that such type of vascular bundles are present in roots। ऐसे जो vascular bundles होते हैं mostly it is found in root system। ये generally आपके जो भी present होते हैं वो root system पे ही होते हैं, ठीक है। So note it down। लास्ट पार्ट जो हम देख रहे हैं वो है conjoint vascular bundle। What is the meaning of conjoint vascular bundles? Generally it gives the own self definition conjoint, ठीक है। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड एट द सेम रेडियाई। इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम है, अगर हम बात करें, सो जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, तो अगर हम बात करें, सो सपोज ये वाला पार्ट अगर हमारा फ्लोएम है या जाइलम है, ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा वो जनरली आपका क्या है, फ्लोएम है। So these are the proper arrangement of xylem and phloem। यानी जितने भी वेस्कुलर बंडल सेल्स हैं या टिश्यू है वो पूरे xylem and phloem के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, और उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एंड दैट फैक्टर वाज कैम्बियम, ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए, कैम्बियम था, ठीक है। सो xylem and phloem आर अरेंज्ड इन द सेम रेडियाई। इनका जो रेडियाई है वो सेम है, ठीक है। रेडियाई इट इज अ डायमीटर, बट इसका हाफ करेंगे तो रेडियाई ही होगा। इनका जो रेडियाई है वो सेम रहता है, और ये एक ही रेडियाई पे दोनों अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। जाइलम अलग होते हैं, फ्लोएम अलग होते हैं। एक का काम कंडक्शन ऑफ वाटर, एक का काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड ऑल्सो, लेकिन ये प्रेजेंट जो होते हैं एक ही रेडियाई पे होते हैं। सो मोस्टली कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम एंड लीव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टेम और लीव्स में होते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। हमारे जो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स थे वो जनरली रूट्स में होते हैं। सो आपको सारा चीज बहुत अच्छे से याद करना है। इसके अलावा हम जो बात करते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स, सो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स जो है हमारा मोनोकोटिलेडन्स में कॉमन था,
उसके बाद हम ओपन वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं। सो ये वाले जो थे वो हमारे कैम्बियम के साथ साथ ये किसमें डाइकोटिलेडन्स में प्रेजेंट थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट स्ट्रक्चर, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. In next video we will discuss in a detailed manner of monocotyledons and dicotyledons, different types of cells and tissue also. If you have any doubt regarding my topic, you can contact me. Thank you, students.